Hello everyone, welcome to your English class students. Students, today we will start another short story of your book that is Out of Business. It has been penned down by R.K. Narayan. Okay, students, let's just study about R.K. Narayan, who is the author of your story. Okay, रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. तो इनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. तो 1906 से लेकर 2001 तक ये जो हाँ रहे. अ हाईली एक्लेम्ड इंडियन ऑथर वॉज बोर्न इन मद्रास. ठीक है, मद्रास में पैदा हुए, जो अभी चेन्नई जिसको बोलते हैं हम. हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में जो आया था वॉज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एज अ विलेज स्कूल टीचर. ओके, so as a village school teacher his experiences are very good, and on the basis of this he had written Swami and Friends. His other works include The English Teacher, it is in 1945, and The Vendor of Sweets in 1967, Waiting for the Mahatma Gandhi in 1955, The Guide in 1958, The Man-Eater of Malgudi in 1961, and A Tiger for Malgudi in 1983, A Horse and Two Goats in 1970, Malgudi Days in 1982, and The Grandmother's Tale in 1994 are the collections of Narayan's short story. Okay, these are the collections of Narayan's short story. In short stories jitni bhi hain, these are all above discussed here. Okay, then R.K. Narayan gave a new face to Indian writing in English. Okay, he has given a new face to Indian writing in English. He is known for his simple and elegant style of writing. Okay, he is well known for simple and elegant style of writing. Elegant means graceful. Okay, stylish. He also condensed and simplified the epics. So epics, you have heard about Ramayana, Mahabharata. Okay, all these are epics of Hindus. So he has also condensed. Condensed means shorter. He has shortened those and simplified the epics like Ramayana and Mahabharata. Okay. Then students, it is Out of Business is about a young man named Rama Rao. Okay. So students, let me first ask you a question. Should we follow shortcut methods in life to solve our problems? Well, we need to maintain our cool and fight out the crisis. There is no substitute to hard work. It is very, very important, students. There is no substitute to hard work, and it applies on yourself also. Hard work जो है इसका कोई भी substitute नहीं है. You have to work hard to succeed. Okay? No shortcut methods are there in your life. There should be no shortcuts. There should be only hard work to success. Okay, it pays in the long run, and this is all about the story. When you read it, when you try to understand it, it will make you easier to understand. This is the theme of the story, that shortcut methods should not be applied in life. It pays in long run when we applied only hard work in our life. Okay, so everyone's is key to success is hard work. Okay, so students, let us continue with the chapter reading. Little over a year, Rama Rao went out of work when a gramophone company of which he was Malgudi agent went out of existence. So Rama Rao जो है एक वर्कर हैं ग्रामोफोन कंपनी में. ठीक है, तो मालगुडी एजेंट थे, ये वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब जो है ये एग्जिस्टेंस नहीं रही है, मतलब अब अस्तित्व नहीं रहा हुआ है. ये पुराने दिनों की बात की जा रही है जब R.K. नारायण जो थे लिखते थे. ठीक है,
He had put into that agency the little money he had inherited as security. तो वो जितनी भी मनी जो थी, ठीक है, जो उसकी सिक्योरिटी थी, वो सारी मनी जो है उसने क्या की, एक एजेंसी में ज़मानत के रूप में थोड़े थोड़े बहुत पैसे जो थे वो उसने जमा करवाए रखे थे, ठीक है. देन for 5 years his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. ठीक है, तो 5 सालों तक उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, ठीक है, उस एजेंसी में भी बहुत अच्छा जो है चल रहा था. इतना मनी जो है उसने इकट्ठा कर लिया था कि वो अपने वाइफ और चिल्ड्रन को खुश रख सकता था, कंफर्ट में रख सकता था. ही बिल्ड अ स्मॉल बंगलो इन द एक्सटेंशन एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग एन ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज. तो इतने अच्छे वेल फ्लोरिश बिजनेस था उसका कि उसने एक बंगलो जो है, एक स्मॉल बंगलो अपने लिए बनाया था, ठीक है, और जो है अब वो सोच रहा था कि एक बेबी कार जो है वो खरीद ले, ठीक है. अब बेबी कार क्या होती है? बेबी कार मीन्स छोटी सी कार, जैसे मारुति वगैरह, बड़ी वाली कार नहीं, छोटी कार, ठीक है. तो वो सोचता था कि सस्ती सी कोई छोटी कार वो खरीद ले, ठीक है. एंड वन डे इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू द क्रैश केम, ठीक है. लेकिन ऐसा वो सोच रहा था, इतने में क्या होता है कि एक उसको क्या होता है, एक बोल्ट सा लगता है. बोल्ट मतलब एक शॉक, ठीक है, उसके लिए एक ये शौक था, ठीक है. अब क्या शौक था, ठीक है, तो एक आकाशीय बिजली जो है उस पे पड़ गई. एक बोल्ट, ब्लू मतलब कि जो आसमान में बिजली चमकती है, उन्होंने ये फ्रेज यूज़ की है कि ऐसे बिजली सी पड़ गई एकदम से उसके ऊपर. ऐसे लगता था कि एक जो है क्रैश हो गया और बिजली उसके ऊपर गिर गई, ठीक है. उसकी कंपनी जो है वो क्या हो गई थी, व्यापार उसका बंद हो गया था, ठीक है. तो ऐसा क्यों हुआ? A series of circumstances in the world of trade, commerce, banking and politics was responsible for it. तो अब इसलिए क्या था कि बहुत सारा जो बिजनेस था, ठीक है, वो इसके लिए इसका बिजनेस जो था वो बंद हो चुका था. कॉमर्स, बैंकिंग, पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ये सारा कुछ उसके ये बैंकिंग, कॉमर्स, पॉलिटिक्स जो थे यही रिस्पॉन्सिबल थे उसका जो है ये बैंक इसका बंद होने का, कंपनी का कारण था. द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नदर्न इंडिया, ठीक है, जो ग्रामोफोन कंपनी थी जहाँ पे वो काम करता था, तो वो फैक्ट्री जो थी वो नदर्न इंडिया में थी, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली कोलैप्स व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश्ड. तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली वो जो थी कंपनी जो थी वो क्या हो गई, बंद हो गई. क्यों, कैसे बंद हुई? क्योंकि जो बैंक था लाहौर में वो क्रैश हो गया, मतलब वो एकदम से बंद हो गया, ठीक है. विच वॉज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ अ बॉम्बे फाइनेंशियर्स डेथ. और वो भी किस कारण हुआ? वो लाहौर में जो बैंक था वो किसके कारण बंद हुआ? जो बॉम्बे में जो है जो फाइनेंशियर था, लाहौर बैंक का फाइनेंशियर, ठीक है, जो फाइनेंस करता था उस बैंक को, उसकी डेथ हो गई. तो डेथ कैसे हुई? द फाइनेंशियर वॉज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड, ठीक है. तो वो डाउन हिल ड्राइव कर रहा था, तो अब अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और कार जो है वो साइड से गिर गई खाई के अंदर, टू 300 फीट बिलो द रोड, ठीक है, 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई. इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड. और ये माना जाता था उस टाइम पे कि उसने क्या किया है, सुसाइड कमिट किया है, मीन्स अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था. बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ एलोप्ड विद हिज कैशियर. तो क्यों ऐसा किया उसने? माना जाता है कि उसकी पिछली रात उसकी बीवी जो है कैशियर के साथ, उसी के कैशियर के साथ भाग गई थी, तो उसको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गम लगा, ठीक है, तो उसने इसलिए सुसाइड कमिट कर लिया. रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स. और जैसे ही वो बैंक भी क्रैश हो गया ड्यू टू फाइनेंशियल डेथ, ठीक है, तो जैसे भी डेथ हुई उसकी, लेकिन फाइनेंशियल मर गया, तो बैंक को फाइनेंस करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ग्रामोफोन कंपनी भी
बंद हो गई। तो उसकी वजह से रामाराव सड़कों पर आ गया, गलियां छानने लगा, ठीक है, जॉब के लिए जो है करने लगा मिन्नतें। एट द फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स। देयर वॉज लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। तो अब बहुत ही कम मनी उसके पास बची थी जो वो थोड़े दिन के लिए खर्च कर सकता था, उसके बाद वो मनी जो है ख़त्म हो जाती। But the stock moved out slowly, the prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. अब धीरे धीरे जो मनी थी उसके पास वो कितनी देर रहती, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, धीरे धीरे खर्च हो गई, क्योंकि जो भी ज़रूरतें थी उसकी फैमिली की वो पूरी कर रहा था, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो मनी भी ख़त्म होगी। द प्राइजेस वर गोइंग डाउन एंड ही कुड हार्डली रियलाइज अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब उसको लगा कि अब उसके पास कुछ ही रुपए जो हैं वो बचे हैं। When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. ठीक है, तो क्या हुआ, अब जब मनी उसके पास ख़त्म हो गई तो उसने जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो रिफ़ंड जहाँ पे उसने सिक्योरिटी अपनी रखी थी बैंक में, तो उसको लगा कि रिफ़ंड मिल जाएगा उसको, ठीक है, लेकिन कोई भी रिफ़ंड उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिस बैंक को वो एप्लीकेशंस दे रहा था वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस नहीं ले रहा था, ठीक है, तो वो मनी भी चली गई। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग, ठीक है, अब जो मनी थी वो फास्ट मेल्ट हो रही थी। अब मतलब मेल्टिंग का यहाँ पे है कि वो पैसे कम हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि पिघल रही थी मनी, मतलब मेल्टिंग मीन्स वहाँ पे ख़त्म हो रही थी मनी, ठीक है। रामाराव's wife now tried some measures of economy. She sent away the cook and the servant. ठीक है, अब रामाराव की वाइफ जो है जैसे पहले लाइफ जी रही थी वैसे नहीं अब जी पाई, ठीक है, उसने सोचा कि मैं अपना खर्चा जो है वो क्या करती हूँ, थोड़ा कम करती हूँ। उसने क्या किया, जो कुक और सर्वेंट उसने रखे थे वो उसने भेज दिए, ठीक है, अब वो खुद खाना बनाती थी। और उसके बच्चे जो थे withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to फ्री प्राइमरी, ठीक है, अब अपने बच्चे भी उसने प्री प्राइमरी से निकाल दिए, अपनी नर्सरी क्लास से निकाल दिए, वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, और उनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, वहाँ से उसका खर्चा जो है बच गया। And they let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. अब क्या हुआ कि अब उन्होंने अपना बंगला भी रेंट पे दे दिया, ठीक है, यहाँ से उनका रेंट आता रहे और वो क्या करते रहे, अपना जीवन का गुजारा कर सकें जब तक कि रामाराव को कोई जॉब नहीं मिल जाती थी, ठीक है। Ramarao sent out dozen of applications a day and wore his feet looking for the employment. अब रामाराव बेचारा रोज़ कोशिश करता था कि हज़ारों एप्लीकेशन, डजन्स ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब कि बहुत सारी एप्लीकेशंस उसने भेजी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, उसको कोई भी जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो फॉर अ मैन अप्रोचिंग 40 लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कम वेरी ईजिली। अब जो 40 साल का जो है इंसान हो गया उसके लिए बहुत मुश्किल होता है जॉब ढूंढना, ठीक है, तो स्पेशली व्हेन ही हैज़ जस्ट लॉस्ट एन इंडिपेंडेंट लुक्रेटिव बिजनेस, और स्पेशली तब उसके लिए बहुत मुश्किल था ये जॉब ढूंढना, क्योंकि वो शुरू से एक बिजनेस में कमाई कर रहा था। लुक्रेटिव बिजनेस मीन्स लाभकारी, ठीक है, कमाई वाला, वहाँ से छोड़कर उसको एक नई जॉब ढूंढना उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता था, मुश्किल हो रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो एप्लीकेशंस देता गया, ठीक है। रामाराव वॉज वेरी बिजनेस लाइक इन स्टेटिंग हिज रिक्वेस्ट। तो रामाराव जो था उसकी बिजनेस माइंड था, ठीक है, तो वो हमेशा जो है जिस भी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता था बस यही बोलता था कि बिजनेस जो है इम्पोर्टेंट है, अपने बिजनेस के बारे में ये बातें करता रहता था। ही सेंट हिज कार्ड इन एंड आस्क्ड आई वंडर सर इफ़ यू कुड डू समथिंग फॉर मी, ठीक है, एक बिजनेसमैन के पास जाता है और उसको कार्ड भेजता है और बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरी हेल्प कर दें मेरा बिजनेस जो है चलाने में, माई बिजनेस इज़ ऑल गोन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन। अब वो उसको बताता है कि मेरा बिजनेस ठप हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन गिव मी समथिंग टू डू,
ठीक है। अब वो उसको बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, उसकी वजह से तब भी जो है मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस खराब हो गया, ख़त्म हो गया, ठप हो गया, तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा। ग्रेटफुल मीन्स आभारी, ठीक है, कृतज्ञ होना। तो मैं बहुत वैसा रहूँगा अगर आप मुझे मेरी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप मुझे करने को दे दीजिए इन योर ऑफिस, ठीक है, अपने ऑफिस में कोई भी काम आप मुझे दे देंगे। व्हाट अ पिटी रामा राव, आई एम ऑफुली सॉरी, देयर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट। अब वो उसको बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है, पिटी है, ठीक है, मुझे अफसोस है तुम्हारी इस कंडीशन पे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ऑफुली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ, क्योंकि एट प्रेजेंट मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी आई विल सर्टेनली रिमेंबर यू। अब वो कहता है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें ही याद करूंगा और तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इट वॉज the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank as he turned into his street behind the market. अब क्या होता है, जो जवाब उसको वहाँ से मिला, हर जगह पर वो जहाँ भी जॉब ढूंढने जाता था उसको वही जवाब मिलता था, ठीक है। His wife would invariably be standing at the door with the children behind her looking down the street. अब रोज़ जब भी वो जाता था उस गली में जहाँ पे उन्होंने रेंट के लिए मकान लिया था, ठीक है, वहाँ पे उसकी वाइफ जो है दरवाजे पे खड़े होकर अपने बच्चों के साथ उसको देखती रहती थी, ठीक है, कि कब मेरा हस्बैंड आएगा, जॉब की खुशखबरी सुनाएगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, रोज़ वो वही कहानियाँ सुनकर वापस आता था और जॉबलेस घूम रहा था। What anxious eager faces they had. अब उनके फेसेस जो थे एगरनेस से भरी उनमें कि वो जो है जॉब के लिए तरस रहे थे, ठीक है। सो मच ऑफ ट्रेम्बलिंग हेजिटेटिंग होप इन देयर फेसेस। उनको जो था बहुत ज़्यादा होप था कि आज जो है हमें खुशखबरी मिलेगी, अभी मिलेगी, या आज गए हैं आज मिलेगा, लेकिन उनका होप जो है धीरे धीरे ख़त्म होता गया। They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment. वो हमेशा यही सोचते थे कि आज हमारे पापा आ रहे हैं, आज मेरा पति आ रहा है, तो अच्छी कोई खुशखबरी लाएगा जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी या पहले जैसी हो जाएगी। As he remembered the futile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him, he wished that his wife and children had less trust in him. अब बार बार उसको एक ही जवाब मिलना, अब वो क्या हो रहा था, उसका मॉरल जो है वो डाउन होता जा रहा था, ठीक है। अब उसको खुद पे भी विश्वास नहीं रहा था, ठीक है। अब ये चाहता था कि कम से कम उसके वाइफ जो है, चिल्ड्रन जो हैं उस पर ट्रस्ट करें। अब ये उसको ये जो है शक हो रहा था कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा मॉरल डाउन हो रहा है, मेरे चिल्ड्रन और मेरी जो वाइफ है उनको भी मेरे पे भरोसा नहीं रहा होगा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अब नकारा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। His wife looked at his face, understood and turned in without uttering a word. The children took the क्लू एंड फाइल्ड साइलेंटली। अब उसके बच्चे, उसकी वाइफ जो है उसका फेस जब देखते थे निराशाजनक, ठीक है, तो वो भी जो है क्या करते थे, समझते थे ये बात को और जो है चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। रामाराव ट्राइड टू इम्प्रूव मैटर्स विद फोर्स हार्टेडनेस। वेल हाउ आर वी ऑल टुडे, टू विच ही रिसीव्ड मम्बलिंग फीबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो अब क्या होता था, रामा राव जो है वो भी एक बहुत ही जिंदा दिली से ये बात जो अपने फैमिली से करता था कि चलो अच्छा आप बताओ आज क्या हुआ, आज की मतलब बातें करता था कि ये सब भूल जाए, ठीक है। तो बच्चे भी उसको अच्छे से जवाब देते थे, ठीक है। मम्बलिंग मीन्स जो है बड़बड़ाना, फीबल मीन्स कमज़ोर, ठीक है। तो अब उसके बच्चे और बीवी से यही जो है रिप्लाई उसको आ रहा था, वो बड़बड़ाते रहते थे मन में कि कुछ हो नहीं रहा है, हमारी लाइफ जो है ख़राब हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से उनकी लाइफ जो है हो गई। इट रेंट हिज हार्ट टू सी दैम इन दिस कंडीशन। अब जो है उसका हार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता था, उसको बहुत ही पेनफुल महसूस होता था, उसका दिल जो ऐसे कहते हैं कि चीर
दिया किसी ने। इस तरह से उनकी कंडीशन देख के उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। देयर एट द एक्सटेंशन हाउ दिस गर्ल would sparkle with flowers and bright dress. She had friendly neighbors, a women's club and everything to keep her happy there. अब वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है कि ये एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में चमक रहती थी, ठीक है। तो फूलों की तरह उसकी ज़िंदगी थी, ड्रेसेस जो थी बहुत अच्छी पहनती थी, उसकी फ्रेंडली नेबर्स थे, एक वुमेन क्लब था जहाँ पर वो जाती थी, और सब कुछ इतना अच्छा था उसकी बीवी की लाइफ में कि वो खुश रहती थी। लेकिन बट नाउ शी हार्डली हैड द हार्ट और द नीड टू चेंज इन द इवनिंग्स, फॉर शी स्पेंड ऑल हर टाइम कूप्ड अप इन द किचन, ठीक है। तो अब जो उसकी लाइफ बदल गई थी उसकी बीवी की। अब ऐसा नहीं था, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस नहीं थी, शाम को भी वो कपड़े नहीं बदल पाती थी और उसको इतना टाइम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पूरा दिन वो किचन में रहती थी, ठीक है, और उसके बाद अपने बच्चों को संभालती थी। द हाउस इन द एक्सटेंशन हैड अ कंपाउंड एंड दे रोम अबाउट विद डजन विद चिल्ड्रन। जो घर उन्होंने वहाँ पे रख लिया था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और इधर उधर वो घूमते रहते थे। इट वॉज पॉसिबल टू हैव न्यूमरस फ्रेंड्स, वहाँ पे पॉसिबल था कि वो बहुत सारे फ्रेंड्स उसके बच्चे बना लें, लेकिन नर्सरी स्कूल में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। बट देयर द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स, कुड प्ले ओनली इन द बैकयार्ड ऑफ हाउस। अब यहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं थे उनके, वो वहीं पे बैकयार्ड में खेलते रहते थे, घर में ही, ठीक है। देयर शर्ट्स वर बिगनिंग टू शो टेयर्स एंड फ्रेज। अब उनकी शर्ट्स जो थी अब वो कैसी थी, ऐसा लगता था फटी हुई हैं, ठीक है। उनके कपड़े जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए हैं, फ्रे मीन्स घिसावट, घिस गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके कपड़े जो थे हो गए थे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है उनकी फैमिली कर रही थी। ऑल द रामाराव ली इन बेड एंड स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स ओवर इट, ठीक है। तो रामाराव जो था उसने कई रातें ऐसे गुजार दी, उसको नींद नहीं आती थी टेंशन में, ठीक है। वो लेटा रहता था बेड पे, सोचता रहता था क्या करूं जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड ऑल द कैश इन हैंड वॉज नाउ गॉन। और जितना भी पैसा बचा के रखा था उसने वो सारा खर्च हो गया। Their only source of income was a small rent they were getting from their house in the extension. और अब उनके पास एक ही इनकम सोर्स था। वो क्या था सोर्स ऑफ इनकम? वही जो बंगलो उन्होंने बनाया था, जो रेंट पे वो देकर आए थे, वही रेंट उनको मिलता था और उसी से वो अपना गुजारा कर रहे थे। They shuddered to think what would happen to them if their tenant should suddenly leave. तो अब जो है वो ये सोच कर ही कांप उठते थे। शडर मीन्स कांप उठना। तो वो सोच के ही कांप उठते थे कि क्या होगा अगर उनके किराएदार भी घर छोड़कर चले जाएंगे। तो अब उनके पास तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर वो घर से जो है किराया जो आता था उससे वो घर चला रहे थे अपना, लेकिन अगर किराया भी नहीं आएगा तो वो घर कैसे चलाएंगे। It was connection that Ramarao came across a journal in the Jubilee reading, ठीक है। और उन्हीं दौरान क्या हुआ, रामा राव एक जुबली रीडिंग जो थी उसके कांटेक्ट में आए, ठीक है। जर्नल मीन्स एक पत्रिका, ठीक है, एक मैगजीन टाइप की। तो उसके जो हैं वो कांटेक्ट में आए। क्या हुआ, इट वॉज कॉल्ड द कैप्टन। तो इसको वो पत्रिका का नाम था कैप्टन, ठीक है। कंसिस्टेड ऑफ 4 पेजेस, 4 पेजेस होते थे उसमें। ऑल ऑफ देम वर डिवोटेड टू क्रॉसवर्ड पजल्स। और उसमें क्या था, क्रॉसवर्ड पजल्स थी, ठीक है। इट ऑफर्ड एवरी वीक अ फर्स्ट प्राइज ऑफ 4000 रुपीज़। और हर हफ्ते वो 4000 का प्राइज जो है ऑफर करती थी वो क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है। तो वो पजल सॉल्व करनी होती थी और सेंड करनी होती थी। और जो जीत गया, जो फर्स्ट जिसने भेजी होंगी, तो उससे क्या मिलता था, 400 रुपीज़ जो हैं वहाँ पर मिलते थे उसको, 4000 रुपीज़। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स। अब क्या हो गया, जैसे ही उसने ये सब देखा
तो वो फैमिली की जिम्मेवारी भूल गया, उसको कोई फैमिली की केयर नहीं थी अब, ठीक है। ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिज आंसर्स। अब वो यही देखता था कि मैं पजल किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर दूँ और वही शॉर्टकट मेथड्स अपना लूँ और शॉर्टकट में मुझे मेरी लॉटरी लग जाए और वो 4,000 रुपये मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। तो अब वो फैमिली की जो है टेंशन था वो भूल गया, बस यही सोचता रहता था कि कैसे भरूं, टैलो भरूं या फैलो भरूं, बैड या मैड, सैड, ठीक है, ये सोचता है ये वर्ड्स यहाँ पे कैसे आएंगे, कैसे फिट होंगे। तो यही सोचता रहता था और बाकी सब कुछ वो भूल गया था। ही हार्डली स्टॉप टू लुक एट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। घर पे भी जाता था तो भी अपनी वाइफ चिल्ड्रन को नहीं देखता था, जैसा पहले वो रिएक्ट करता था वैसा नहीं था। अब उसको बस यही था कि किसी तरह से वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करनी है और पैसा कमाना है, ठीक है। वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड अ लिटिल मनी and sent down his solution, and every week he awaited the results with a palpitating heart. तो क्या होता है, हर वीक वो क्रॉसवर्ड पजल भेजता था, कभी भी जीतता नहीं था, हर बार भेजता था और जितने भी पैसे थे वो सारे ख़त्म कर चुका था उसी क्रॉसवर्ड पजल में। और जब भी रिजल्ट आने वाला होता था, पैल्पिटेटिंग हार्ट मतलब दिल उसका धड़क रहा है ज़ोरों से, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना तो आप भी डरते हो कि क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे, वैसा ही उसको भी डर रहता था कि उसका हार्ट जो है पैल्पिटेट कर रहा है, दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और वो जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। On the day solution was due, he hung about the news agent shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. अब हर बार जब भी रिजल्ट आता था तो उसको न्यूज़पेपर में देखना होता था, तो वो बार बार न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर ले लेता था और जो है उसको बोलता था कि पैसे नहीं दूंगा। तो जब भी वो पैसे मांगते थे उससे तो वो क्या बोलता था, ही वॉज टू इम्पेशेंट टू वेट टिल द जर्नल केम ऑन द टेबल इन द जुबली रीडिंग रूम। तो वो ये भी इंतज़ार नहीं कर पाता था कि वहाँ पे रीडिंग रूम में जब न्यूज़पेपर आएगा तो वो देख लेगा, वो पहले ही एडवांस में ले लेता था न्यूज़ वाले से। Sometimes the news agent would grumble and Ramarao would specify him with an awkward affected optimism, please wait, when I get a prize I will get you 3 years subscription advance. His heart quailed as he opened the, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी न्यूज़ एजेंट उससे पैसे मांगता था तो वो उसको बोलता था ठहर जाओ, जब मैं जीत जाऊंगा एक बार तो तुम्हें 3 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में ही दे दूंगा, मतलब पहले से एडवांस में तुम्हें पैसे दे दूंगा, अभी थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से उसको जो है वो बातों में फंसा रहा है कि एक बार मैं जीत जाऊँ तो तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा और एडवांस में भी कुछ दे दूंगा, ठीक है। तो उसका हार्ट जो है वो क्वेल करता है, ठीक है, धड़क रहा है जब पहले वो रिजल्ट देखता है। पेज अनाउंसिंग द प्राइज विनर, जैसे ही पेज खोलता है तो बहुत सारे प्राइज विनर्स के नाम होते हैं। बालूचिस्तान, समवन इन ढाका एंड समवन इन सेलिन हैड हिट अपॉन द राइट सेट ऑफ वर्ड्स, नॉट रामाराव। लेकिन रामाराव नहीं जीतता है, वहाँ पे हर बार जो है किसी दूसरे का ही नाम होता है, ठीक है। It took 3 hours for Ramarao to recover from this shock. और 3 घंटे उसको लग जाते हैं वो शॉक से बाहर निकलने में कि वो जीत नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल फिर से वही सोचता कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीता तो नेक्स्ट टाइम जीत जाऊंगा, ठीक है। तो फिर दोबारा से वो वही पोजीशंस पे आ जाता था। द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम टू बी प्लंज इन टू द वीक पजल दैट वुड कीप हिम बॉयड अब विद होप फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। तो अब उसको वो यही सोचता था कि ठीक है इस हफ्ते नहीं जीता तो अगली वीक फिर जीत जाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो हर एक टाइम अपना निकाल रहा था। दिस वायलेंट ऑल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डेस्पेयर सून wrecked his nerves and balance. अब धीरे धीरे कितनी देर वो जो है ऐसा रहता, तो ये जो एक्टिविटी थी जो वो कर रहा था इससे ही क्या हुआ, जो होप वो कर रहा था कि मुझे क्या होगा, मिलेगा एक न एक दिन पैसा, वो होप जो है वो निराशा में बदलने को देर नहीं लगी, ठीक है। एट होम ही हार्डली स्पोक टू एनीवन। अब वो धीरे धीरे जब वो हारते जा रहा था, हर हफ्ते हारते जा रहा था, तो वो होप जो है वो डेस्पेयर में बदल गया, ठीक है, निराशा में बदल गया। और वो अपने घर में अब किसी से बात नहीं करता था, ठीक है। हार्डली ही बात करता था, जिस बात का उसको पूछा जाता था वही जवाब देता था। घर पे किसी से बात नहीं करता था, अपने बच्चों से बात नहीं करता था, अपनी वाइफ से बात नहीं करता था, ठीक है। ही क्वारल्ड विथ
his wife if she refused to give him his rupee a week for the puzzles. अब वो अपनी बीवी से भी लड़ता था घर पे अगर उसको उसकी बीवी पैसे नहीं देती थी. किसके लिए? पजल्स के लिए. She was of a mild disposition and was incapable of sustained quarrel. अब क्या होता था कि वो थोड़े जो थी उसका जो था नेचर था वो बहुत ही माइल्ड था. वो नहीं चाहती थी कि कोई भी वो लड़े. ठीक है. विद द रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट व्हाट वांटेड. ठीक है. इसीलिए हमेशा से जो है वो पैसे उससे आसानी से ले लेता था और थ्रू इट मेंट स्लाइट सेक्रीफाइस इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. और वो बेचारी क्या करती थी कि जो उसको पैसे देती थी वहाँ घर खर्च में जो काम आने होते थे वही पैसे उसको दे देती थी और अपने घर खर्चे और ज़्यादा कंजूसी से करती थी. वन डे अ गुड जर्नल अनाउंस्ड अ स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज़. अब जो है एक और जर्नल जो है पत्रिका आई जिसमें लिखा था कि 8,000 रुपीज़ की जो है वो देगी प्राइस मनी. ठीक है. तो अब रामा राव और ज़्यादा खुश हो गया. इट एक्साइटेड रामा राव विजन ऑफ फ्यूचर टेनफोल्ड. अब वो है वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगा कि 4,000 क्या होता है, छोड़ो, अब मैं तो 8,000 में कमा कर बताऊँगा. ही स्टडीड द पजल. उसने पजल पढ़ी अच्छे से. देयर वर ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट एंड ही माइट हैव टू सेंड एटलीस्ट 4 एंट्रीज. और वहाँ पर जो थी 4 डाउटफुल कॉर्नर्स थे और उसको वहाँ पर 4 एंट्रीज भरनी थी. अ लार्जर आउटले वॉज इंडिकेटेड. और वहाँ पे बताया गया था कि क्या इंडिकेट उसने बताया था, इंडिकेशंस दी हुई थी किस तरह से भरना है. यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज़ दिस टाइम ही सेड टू हिज वाइफ एट विच दैट गुड लेडी बिकम स्पीचलेस. ठीक है. तो अब वो फिर से जाता है अपनी बीवी के पास और उसको बोलता है कि प्लीज़ मुझे 5 रुपये दे दो, इस बार दे दो. और उसकी बीवी बेचारी शरीफ है, वो स्पीचलेस है, वो कुछ नहीं बोलती है. ही हैड बिकम रैदर इनसेंसिटिव टू सच थिंग दिस डेज बट ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग द एट्रोशियस नेचर ऑफ हिज डिमांड. लेकिन वो बेचारी जो है अब जो उसका एट्रोशियस नेचर है उसकी डिमांड का, ठीक है, अब वो नहीं कर सकती है कुछ भी. ठीक है. वो उसको मना भी नहीं कर सकती है कि वो क्या बोलेगी उसको. 5 रुपीज़ वर नियरली अ वीक्स फूड फॉर द फैमिली. तो 5 रुपीज़ जो थे वो उसकी फैमिली के लिए पूरे हफ्ते का खाना ला सकते थे. लेकिन वो 5 रुपये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायने रखते थे. लेकिन वो 5 रुपये भी रामा राव अपनी बीवी से मांग रहा था. ठीक है. He felt disturbed for a moment, but he had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this despair and his mind was at once at rest. तो अब क्या होता है, लेकिन उसको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि क्या वो पैसे कैसे दे रही है उसके. वो बस यही सोच रहा है, उसके दृश्य यही है कि क्या डालूंगा मैं एंट्रीज, क्या भरूंगा, होप भरूंगा या डोप भरूंगा, रोप भरूंगा या कुछ और भरूंगा. वो यही सोच रहा है. उसको कुछ भी टेंशन नहीं है उसकी फैमिली के साथ क्या होगा, कुछ भी टेंशन नहीं है उसको. बस उसी के बारे में जो है पढ़ी है, पजल्स के बारे में पढ़ी है. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.